عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد ابتلاء؟ قال: أنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دين صلبا أو صلابا اشتد بلاؤه وإن كان في دين رقا ابتلي على قدر دينه. ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على وجه الأرض ولا يبقى له خطيئات. أخرجه الترمذي في سننه. گرامی قدر فضیلت الشیخ صلاح الدین المدنی حفظہ اللہ، ناظم مدرسہ ہادہ، اراکین ادارہ، اساتذہ کرام، معلمات، طلبہ اور طالبات، اور آج کے اس پروگرام میں شرکت فرما خواتین و حضرات، موجودہ دور میں جو صورتحال انسانیت کے سامنے ہے اس سے ہر ہوش مند انسان بڑی فکر اور پریشانی میں ہے. نت نئے مسائل، فسادات کی کثرت اور ایسی منصوبہ بند سازش جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے تشخص اور وجود کو زبردست خطرہ محسوس ہوتا ہے. کہیں پر ماب لنچنگ کا معاملہ تو کہیں پلاننگ کے ذریعے مسلم لڑکیوں کے ساتھ غیر مسلموں کی ایسے حرکت کی شادی کی لالچ کے ذریعے انہیں ان کے اسلام سے، ان کے اخلاق سے برگشتہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. الغرض اگر پوری دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات کہنا غلو نہیں ہوگا، اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کا حصار کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی حجاب کے معاملے کو لے کر مسلم لڑکیوں کی تعلیم میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش، اور کہیں پر مسلمانوں کے خلاف بیجا الزامات عائد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تجارت کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو امت کے لیے انتہائی المناک، پریشان کن اور کربناک بن چکے ہیں. آج مسلمان بھی سوال کرنے پر مجبور ہے کہ آخر وہ وجوہات کیا ہیں جن کی بنیاد پر امت مسلمہ کو یہ برے دن دیکھنے کو ملتے ہیں. میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. آئیے ذرا میں بتاؤں. میں نے آپ کے سامنے سعد بن وقاص سے مروی ایک حدیث کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے جس میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سب سے زیادہ سخت آزمائش انسانوں میں کس کی ہوگی؟
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अशद्दुन्नासी इब्तिलान अल अंबिया सुम्मा अल अमसल फल अमसल, सबसे ज्यादा शदीद आजमाइश अंबिया किराम की होती है और फिर उन लोगों की जो अंबिया किराम के नक्शे कदम के ज्यादा करीब हों। हमारे नबी ने इस बात को भी बयान कर दिया, युब्तला रजुल अला क़द्र दीनिही, हर इंसान की चाहे वो मर्द हो या औरत, आजमाइश उसके दीन के बकद्र होगी। फ़इन कान फी दीनी सलाबा, अगर इंसान के दीन में सलाबत है, मजबूती है, पुख्तगी है, तो इंसान की आजमाइश भी शदीद होगी। और अगर इंसान के दीन के मामले में रिक्कत हो, नरमी हो, मुदाहनत हो, कमजोरी हो, तो उसके दीन के बकद्र इंसान की आजमाइश होगी। लेकिन इससे ज्यादा वाज़ेह बात और हमारे और आपकी तसल्ली के लिए जिस बात को हदीस के आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, वो बात यह है कि यकीनी तौर पर हमेशा इंसान आजमाइश से दो चार किया जाएगा और उस आजमाइश से दो चार किए जाने के नतीजे में वो रोए जमीन पर चलेगा ऐसे अंदाज में कि उसका कोई गुनाह बाकी नहीं रहेगा, उसकी गलतियां मिट जाएंगी, वो गुनाहों से मुबर्रा और पाक हो जाएगा। हदीस की तनाजुर में मालूम हुआ, आजमाइश से दो चार होना, मुसीबत को झेलना, परेशानियों को सहना, दुश्मनों के जरिए जो प्लानिंग की जाती है उस दर्द को बर्दाश्त करना, ये तमाम की तमाम चीजें इंसानों के लिए, अहले ईमान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक तोहफा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीजों को हमारे गुनाहों के कफारे का सबब और जरिया बना दिया है। इंसान की गुनाह, इंसान की गलती और खता इन चीजों के जरिए मिट जाया करती है। आपको मैं बताऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी इंसान को आजमाइश से दो चार कर दे, दुश्मनों का हमला उनके सरों पर हमेशा महसूस किया जाए या बीमारियों से वो जूझता हो, ऐसा इंसान बात ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे नाराज है, बात ऐसी नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस पर अज़ाब है, बल्कि बात इसके बरअक्स है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया, इन्ना इज़मल जज़ाई मा इज़मिल बला व इन्ना अल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाह फमन रज़िया फलहु रिज़ा व मन सख़ता फलहु सुख़्त। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बड़ा बदला, बड़ा सवाब और अज़ीम नेमत बड़ी आजमाइशों से दो चार होने के बाद मिला करती है। यानी इस दुनिया में इंसान अल्लाह पर ईमान के बाद अगर परेशानियों से दो चार होता है, अल्लाह पर ईमान की पादाश में अगर दुश्मनों का उस पर हमला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान के ऐलान के बाद अगर उसकी मईशत तंग हो जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान के ऐलान के बाद अगर उसका दायरा हयात तंग कर दिया जाए, तो ऐसे इंसान को ये बात जानना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना अज़ीम बदला, जितना बड़ा सवाब आखिरत में इंसान के लिए मुकर्रर करता है, उसी बड़े बदले के हिसाब से दुनिया में इंसान की आजमाइश करता है। इन्ना इज़मल जज़ाई मा इज़मिल बला, बड़ा बदला बड़ी सजाओं से दो चार होने के बाद इंसान को मिलेगा। व इन्ना अल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी कौम से मोहब्बत करना चाहता है तो उस कौम को आजमाता है। अब आजमाइश से दो चार होने के बाद जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के आजमाइश पर राज़ी रहे, जो सब्र से काम ले, तदबीर को इख्तियार करे, अपने दिल में खौफ महसूस न करे, लोगों के प्रोपेगेंडे से घबराहट में ना पड़े, तो ऐसे इंसान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, ऐसे इंसान को अल्लाह की रज़ा मिलेगी। लेकिन जो इंसान परेशानियों से दो चार होने के बाद जुबान पे हरफी शिकायत पेश करता रहे और अपने आप को खौफ में दाखिल कर ले, तो ऐसे इंसान का आलम यह हुआ कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर से नाराज है, लिहाजा उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी के अलावा कोई और चीज हासिल नहीं होगी। आइए जरा मैं बताऊं, आपके सामने दूसरी हदीस पेश करूं, जिस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपने सही में जिक्र किया है। उस हदीस को अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और अनस इब्न मालिक दोनों ने रवायत किया है।
उस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के साए में एक चादर का टेक लगाकर बैठे हुए थे। आप गौर कीजिए, खाने काबा के साए में एक चादर का टेक लगाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। सहाबी मुसलमानों के हालात को बयान करते हैं। कुरैश मक्का ने, मुशरिकीन ने जो मुसलमानों का नाटका बंद कर रखा था, उन्हें अल्लाह की इबादत की इजाजत न थी, कुरान करीम की तिलावत के लिए आजाद न थे, बल्कि मुसलमानों को तरह तरह के आदाब से दो चार होना पड़ता था। ऐसे में सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होने के बाद जो बात पेश की, उस बात को आप सुनिए और मौजूदा दौर में जो मुसलमानों की सूरत हाल है, उस सूरत हाल पे उसकी तत्बीक देने की कोशिश कीजिए। आपको जवाब मिलेगा कि हमारी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम की जिंदगी की बिलमुकाबिल दुनियावी एतबार से बड़ी गनीमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी कहते हैं, शकौना इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत पेश की और हमने कहा, या रसूल अल्लाह अला तस्तंसिरु लना अला तदउल्लाह लना, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप मदद और नुसरत के तलबगार नहीं बनेंगे? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप दुआ नहीं करेंगे? हमारी सूरत हाल का क्या आपको अंदाजा नहीं है? हम पर कितने मज़ालिम हो रहे हैं, अल्लाह की इबादत के लिए हम आजाद नहीं है। इस शिकायत को सुनने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात पेश किया था, मुसलमानों उस बात को जरा गौर से सुनने की कोशिश करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्ना रजुला फी मन क़ब्लकुम युहफर लहू फिल अर्दि फयुजअलु फीहि व युता बिमिरसार फयुजअल अला रासिही फयुशक्कु इत्नैन ला यसुद्दु ज़ालिका अन दीनिही। मुसलमानों, मेरी मां और बहनों, जरा मेरी बात को सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, तुमसे पहले जो कौमें गुजर चुकी, उनमें किसी मर्द को हाजिर किया जाता, बेड़ियों में जकड़ने के बाद जालिम लोग उसे पकड़ते और लाकर के हाजिर करते, जमीन में गड्ढा खोदा जाता, उस गड्ढे में उसका आधा जिस्म दफन कर दिया जाता, फिर लोहे के आरी को उसके सर पर रखने के बाद उसके जिस्म के दो टुकड़े कर दिए जाते थे। ये दर्दनाक आदाब, ये आदियत कुल मरहला, ये मुसीबत और ये तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद इंसान अपने दीन पर बाकी रहता था। नबी बयान करते हैं कि इस आदाब को झेलने के बावजूद भी इंसान अपने दीन से हटता नहीं था। और मामला सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हदीस के आखिर में कहते हैं, फयूता बिमुशात, कंघी लाई जाती थी और उस कंघी के जरिए इंसान के गोश्त को, इंसान के पट्टों को नोचा जाता था। ये दर्दनाक आदाब, ये मुसीबत की घड़ी और ये मुश्किल के लम्हात इंसान झेलता था, लेकिन अपने दीन पर बाकी रहता था। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़े हसरत के साथ कहना पड़ता है कि आज हम लोग भी मुसलमान हैं, अल्लाह पर ईमान का हमने दावा किया, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जुबान से इकरार कर लिया, नमाज पढ़ने का दम भरते हैं, मदारिस में तालीम हासिल करते हैं, इस्लामी सोसाइटी या इंसानों की सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी परेशानी या मुसीबत का सामना करना पड़ जाए तो ऐसे में दुश्मनों के खौफ के डर से हम कलमे कुफ्र अपनी जुबान से अदा करने लग जाते हैं। उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है, उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों के बारे में ये खबर जो इंतहाई अफसोसकुन है, जिस खबर को सुनने के बाद किसी भी गैरतमंद इंसान का कलेजा मुंह पा जाता है, वो खबर ये है कि हमारे ही सोसाइटी की खातून किसी गैर मुस्लिम लड़के के जाहिरी लिबास को देखने के बाद उसकी गलाजत को भूल कर उसके साथ शादी कर लेने की कोशिश और फिक्र कर लेती है। आए दिन रिपोर्टों के हवाले से खबर हमको मिलती है कि लाखों की तादाद में मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी रचा लेती हैं और उनके साथ इस्लाम से बरगश्ता होने के बाद कुफ्र और इर्तिदाद में दाखिल हो जाती हैं। उन्हें गौर करना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान पर, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पे बयान कर दिया था, वला तनकिहुल मुश्रिकात हत्ता युमिन, ऐ लोगों मुश्रिका औरतों से निकाह मत करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए।
जहां मर्दों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातब बनाया, वहीं पर औरतों को खिताब करते हुए कह दिया, तुम औरतों की जमात मुशरिक मर्दों से शादी मत करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। और दोनों को खिताब करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का बरमला ऐलान कर दिया कि अगर तुम्हें आजाद मुसलमान ना मिले बल्कि गुलाम मुसलमान बने तो उस गुलाम इंसान से शादी करना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है बनिस्बत किसी आजाद मुशरिक से शादी करने के। आयत करीमा ने मामले को साफ कर दिया, लेकिन हमने इस आयत को समझने की कोशिश न की, जिसके नतीजे में आज मुसलमानों को लव जिहाद का नारा दिया जाता है, जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक कहीं से भी इस बात की गुंजाइश नहीं निकलती कि कोई मुसलमान मर्द जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शादी की कुव्वत दी हो वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करने की जुर्रत करे। जिस तरह से औरतों को भी इस बात का मुकल्लफ बना दिया गया, कोई भी मुस्लिम खातून जो अल्लाह पर ईमान रखती हो, जो जन्नत की ख्वाहा हो, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानती हो, जो आखिरत के आदाब से अपने आप को बचाना चाहती हो, वो किसी गैर मुस्लिम किसी काफिर से शादी कर ले, ये बात मुमकिन नहीं हो सकती है। मेरे भाइयों, ये तमाम की तमाम बातें हैं जिन बातों पर गौर करने से पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लामी सोसाइटी या मुसलमानों की जिंदगी, मुसलमानों के बीच में जिंदगी गुजारने वाले मर्द और खवातीन को इस बात का बरमला दर्स दिया है कि कोई भी इंसान इस्लामी तालीमात से हटकर अगर जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगा तो मुमकिन है 2-4 साल उसकी जिंदगी खुशगवार गुजर जाए, लेकिन याद रखो जब ये जवानी ढलेगी और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त आएगी तो फिर कुफ्र के साथ हमारा जिंदगी बसर करना हमारे लिए कितना तबाहकुन होगा। क्या आप जानते नहीं कि आज मगरिबी दुनिया जो इस्लाम और मुसलमानों की जबरदस्त दुश्मन है, मगरिबी दुनिया जो बेहयाई के इंतहा को पहुंच चुकी है, मगरिबी दुनिया जिसने इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाते हुए ऐसे ऐसे हरकतों को अंजाम देने के लिए अपने आप को आमादा कर लिया, जिन हरकतों को इंसान को दूर की बात हैवान भी उन हरकतों को अंजाम देने की कोशिश नहीं करता। लेकिन क्या वजह है कि मगरिबी सोसाइटी की बहुत सारी औरतों ने अपनी तहकीक के आखिरी मरहले में कदम रख लेने के बाद पूरी इंसानियत को जो अजीम दर्स दिया उसमें साफ तौर पे लिख दिया, अपने आप को फांसी के फंदे के हवाले करने से पेशतर एक तहरीर लिखा बरतानिया के खातून ने, जिसे आलमी शोहरत हासिल थी, जो फिल्मी दुनिया के अदाकारा थी, जिसका एक प्रोग्राम लाखों डॉलर उसके लिए मिलते थे, लेकिन वो खातून जब अपनी उम्र के सिर्फ 48 साल को पहुंचती है और फिर अपनी घिनौनी हरकत पर सोचती है तो सोचने के बाद फांसी के फंदे पर लग जाने के अलावा उसके सामने कोई और चारेकार नहीं बचता। लेकिन उसने अपने आप को मौत के आगोश में सुलाने से पहले जो तहरीर पेश किया था, उस तहरीर पर मौजूदा दौर की औरतों को और मर्दों को गौर करना चाहिए। उसने कहा, मगरिबी दुनिया के मर्दों ने मुझे धोखा दिया, मुझे उड़िया बनाकर सामान्य तिजारत की जगह मेरी तस्वीर को पेश किया, मुझे जिस्म फरोशी के लिए मजबूर कर दिया। अब मैं जब अपने करतूत को, अपनी मादी को सोचती हूँ तो इस बात पे गौर करने के बाद ये नतीजा मेरे सामने निकलता है कि अगर मैं शादी के बंधन में बच जाऊंगी और अगर मुझे औलाद मिलेगी तो मेरी औलाद मेरे मादी पर नजर रखने के बाद मेरे बारे में क्या तासुर पेश करेगी। ये सोचकर मैं इस बात का फैसला लेने के लिए मजबूर होती हूँ कि जिंदगी गुजारने के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं बचा, इसलिए मैं अपने आप को फांसी के फंदे के हवाले करती हूँ। आज हमारे दौर की लड़कियां गैर मुस्लिमों की थोड़ी सी दौलत, थोड़ी सी जिस्मानी कुव्वत, उनके ज़र्फ बर्क लिबास को देखने के बाद या उनकी तालीम से मुतासिर होने के बाद उनसे शादी करने के लिए अपने आप को आमादा कर लेती हैं। उन्हें गौर करना चाहिए हेनरी की जिंदगी पर कि उसने अपने बारे में क्या फैसला लिया था। कभी तो इस्लामी खातून का आलम यह था कि एक इस्लामी खातून जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप पर ईमान लाती थी, अगर उसका कोई करीबी रिश्तेदार, यहाँ तक कि उसका बाप भी अगर उसके घर हाजिर होता था तो उसके कुफ्र और शिर्क की घिनौनी हरकत की बिना पर उसको अपने बिस्तर पर बिठाना, उसको अपने करीब करना गवारा नहीं करती थी। आज मुसलमानों, हमारे घरों में तरबियत पाने वाली बच्चियों का यह हाल क्यों बुरा हो चुका है? आज क्यों कर हमारी बच्चियों की तालीम के सिलसिले में पर्दे पर पाबंदी आयद की जाती है? क्या इस्लाम ने
मुस्लिम खातून को गैर मुस्लिमा औरतों से मुमताज बनाते हुए उसे पर्दे का हुक्म नहीं दिया? क्या पर्दे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत और बंदगी में शुमार नहीं कर लिया? क्या पर्दे के बारे में इस्लाम ने इस बात का ऐलान नहीं कर दिया कि पर्दा इस्लामी खातून की इज्जत और वकार का सबब है? क्या पर्दे के बारे में हमारी औरतें इस बात को नहीं जानती कि अगर कोई औरत बेपर्दा होकर मर्दों के शाना बशाना चलने की कोशिश करे, मर्दों से उसका गुजर हो, तो ऐसी खातून के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो खातून जहन्नमी है। और ऐसी खातून के बारे में नबी ने इस बात का भी ऐलान कर दिया, जो औरतें लिबास पहनने के बावजूद उरिया नजर आती हों, ऐसी औरतें न तो जन्नत में दाखिल होंगी और न उन्हें जन्नत की बू मिलेगी। हालांकि जन्नत की बू तो बहुत दूर से मिलती है। आप गौर करो, ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी जो एक औरत या मर्द गुजारते हैं, इस जिंदगी के बारे में हमें गौर करना चाहिए। दुनिया अपनी तमाम तर रानाइयों के बावजूद, अपनी तमाम तर ज़ेब-ओ-ज़ीनत के बावजूद, अपने तमाम तर दौलत और सतवत के बावजूद आखिरत की नेमत के बेमुकाबिल इसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरे नबी ने साफ ऐलान कर दिया था, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा लमा सका मिनल काफिरा शुरबत मा। अगर ये दुनिया अल्लाह की नजर में मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी काफिर को एक कतरा पानी नहीं पिलाता। आप गौर करो, दुनिया आपको कितनी हासिल है, आप कितने प्रॉपर्टी के मालिक हो। अगर आपके इस इलाके से बहस की जाए तो जो सबसे मालदार इंसान होगा शायद चंद करोड़ों का मालिक हो। लेकिन याद रखो, दुनिया के मालदारों के बारे में शायद आपको अंदाजा नहीं, कितनी दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद लोगों को दे रखा है। लेकिन उन तमाम दौलत के जखीरों के बावजूद, दुनिया की तमाम नेमतों के बावजूद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया अपनी तमाम तर नेमतों के बावजूद अल्लाह की नजर में कोई उसकी हैसियत नहीं है। जरा आप गौर करो मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अगयार कौमें मुस्लिम खातून को हिजाब के हवाले से, पर्दे के हवाले से ताना देते हैं। हम उनके ताने से मरूब होने के बाद जब अपनी सोसाइटी से बाहर निकलने की कोशिश हमारी औरतें करती हैं तो पर्दा उनका जाहिर हो जाता है। लेकिन याद रखो, जितना ज्यादा लोग हमें ताना देने की कोशिश करें, हम सोसाइटी में जितनी अजनबियत के शिकार बन जाएं, उसी के बकद्र हमें इस्लामी अहकाम पर सख्ती से अमल करना होगा। और एक खातून जो अल्लाह से डरती हो, जो अल्लाह के आदाब से डरती हो, ऐसी खातून को ये चाहिए कि जब भी अपने घर से बाहर निकले तो पर्दे और हिजाब के अलावा निकलने की जुर्अत न करे। क्या आप जानते नहीं कि अगर आपके पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के सूबा कर्नाटक में कॉलेज में औरतों या बच्चों के पर्दे के सिलसिले में कानून पास हुआ तो उसी कर्नाटक की तारीख और हिस्ट्री अगर आप देखें तो आज की ज्यादा नहीं बल्कि आजादी से पहले बाद शहरों की सूरत हाल ये थी कि हिंदुओं ने अपने इंसानी समाज को कई तबकात में मुनकसिम कर दिया था। आज आप ही जानते हैं, बड़ा तबका, ओबीसी तबका, शूद्र तबका, हिंदुओं में जो इंसानों को तकसीम करने का मामला है, उस तकसीम ने बड़ी रात वालों के लिए तो इस बात का कानून फराहम किया था कि बड़ी रात की औरतें लिबास से बेहतर करें, अपने जिस्म को छुपाएं, कपड़ा पहने। लेकिन जिन्हें वो शूद्र कहते थे, जिनको ओबीसी में शुमार करते थे, उनकी औरतों के लिए कानून और निजाम था कि अगर उनकी खातून अपने जिस्म को कपड़े से ढकती हैं तो ऐसी खातून को अपने जिस्म को ढकने के लिए तावान देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। लिहाजा ओबीसी खवातीन के लिए आपके सूबा कर्नाटक के बाद शहरों में निजाम ये था कि जो लोग निचली जात से ताल्लुक रखते थे हिंदू, उन्हें उनकी औरतों को नाक से लेकर घुटने तक लिबास पहनना होता था। और अगर नाक से ऊपर लिबास पहनना कोई खातून चाहती तो वो तावान अदा करने के बाद लिबास पहनती थी। एक ऐसा वाकया पेश आया जो वाकया मुसलमानों और इंसानों हमारे दिलों को दहला देने वाला है। लेकिन हम लोग माजी को भूल जाते हैं। थोड़ी सी राहत मिली, माजी के आदाब को फरामोश कर बैठे, किसी ने लुकमा फेंका, उसके जुल्म को भूल बैठे। आपको मैं बता दूं, एक खातून ने अपने शौहर से गुफ्तगू की और गुफ्तगू के बाद कहा, हम भी इंसान है दूसरे इंसानों की तरह, हम भी लिबास से बेहतर करेंगी। और जाकर बता दो
ایسے درندوں کو جو ہمیں لباس سے محروم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لباس پہن کر رہیں گی، ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہو فیصلہ کر لیں۔ یہ خبر کرنٹ کی طرف پھیلی اور اس گھر پر ظالموں کا ٹولہ پہنچا جنہیں اپنی قوت پر ناز تھا۔ ٹیکس وصول کرنے کے لیے اس گھر پر جب ان لوگوں نے حاضری دی، خاتون گھر سے باہر نکلتی ہے اور بربلا کہتی بغیر کسی خوف کے، ہاں تم سنو، میں لباس پہن کر تمہارے سامنے آئی ہوں اور میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ اب لباس میں رہوں گی، تمہیں جو بن پڑے کر لو۔ جب ان لوگوں نے اسے دھمکی دی اور تاوان وصول کرنے کی بات پیش کی ورنہ پھر اسے قتل کرنے کی سازش کا انہوں نے اس کو ڈر سنایا، تو اس خاتون نے کہا ٹھہرو، میں تمہارا تاوان لے کر آتی ہوں۔ گھر میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد اپنے گھر سے چاقو لیا، اپنی پستان کو کاٹنے کے بعد ان ظالموں کے سامنے لا کر اپنے جسم کا حصہ پیش کر دیا، کہا یہ تاوان کی شکل میں تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ میرے بہنوں، اس نے اسے ایک خاتون نے قربانی پیش کیا تھا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کچھ دنوں کے بعد انقلاب برپا ہوا اور انقلاب برپا ہونے کے نتیجے میں عورتوں کو وہاں لباس پہننا نصیب ہوا۔ میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں اس واقعے کے حوالے سے، تاریخی حقائق کے حوالے سے، کہ انسانی زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، حالات میں کروٹ لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے، انقلاب کے پیچھے بہت ساری قربانیاں اور بہت ساری اس کی تدابیر ہوتی ہیں۔ اگر ہم لوگ اسلامی تعلیمات کا مقارنہ کریں موجودہ نظام سے، تو آپ کو میں بتاؤں بڑے اختصار کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے اسلام میں جو بھی نظام نازل کیا، جو بھی فرمان اسلام کا ہے، وہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ حالات جیسے بھی ہو جائیں، مشکلات جتنی پیدا ہو جائیں، تبدیلیاں جتنی بھی انسانی زندگی میں پیدا ہو، لیکن اسلامی احکام نبی کے زمانے میں جس طرح ثابت تھے، ہمارے زمانے میں ان پر عمل کرنا ممکن ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت اس پر عمل کرے، عمل کی راہیں ہموار ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام دشمنی میں بہت سارے ملکوں میں یہ نظام نافذ کرنے کی جبریہ کوشش کی گئی کہ اسلام شادی اور بیواہ کے معاملے کو لے کر کچھ قیود رکھتا ہے کہ چچا کی بیٹی سے شادی، فلاں کی بیٹی سے شادی نہ ہو، خالہ سے شادی نہ ہو، پھوپھی سے شادی نہ ہو، سگی بہن سے شادی نہ ہو۔ یہ نظام بڑا فرسودہ ہو چکا ہے، لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھر میں جو بچی پرورش پاتی ہے، گھر کے مزاج کو سمجھتی ہے، ایک دوسرے کو لوگ پہچانتے ہیں، اب شادیاں اگر ایک بھائی کی بہن سے کر دی جائے تو ہمارا گھر زیادہ آباد ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کے قانون کی بغاوت کی، نتیجے میں اپنے ملک میں جبریہ شادی بلد رشتوں سے کرانے کی کوشش کی۔ ایسا ان لوگوں نے کیا تو صحیح، لیکن صرف ابھی شادی کو برتتے ہوئے 10 سال کا یا 8 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام نے جن رشتوں سے شادیوں کو حرام کرا دیا، جب ان رشتوں کی عورتوں سے شادی کی گئی، اس شادی کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی، جو بچے وجود میں آئے، ٹوٹے پھوٹے، لنگڑے لوڑے، ٹیڑھے جسم ان کے تھے، بولنے کی قوت میں نہیں پیدا ہوئی، مجبوراً ان لوگوں نے نظام بنایا کہ ہماری جو فرسودہ تاریخ تھی وہی تاریخ ہمارے لیے بہتر ہے۔ مسلمانوں اور میری ماں اور بہنوں، کلیہ سے فارغ ہونے والی طالبات، میری بات کو غور سے سنو۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا اور پورے عالم کا خالق ہے، اس خالق نے ہمیں جو حکم دیا، اس حکم پر عمل کرنے میں ہماری عزت اور ہماری شرافت اور کرامت کی دلیل ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے میں ہمارے لیے کسی بھی طرح کی عزت اور کرامت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیں اس بات پر پورا وثوق اور اعتماد ہونا چاہیے، اس بات پر پورا فخر اور اعتزاز ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جس بات کا حکم دیا، ہم اس پر عمل پیدا ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بندگی کو بجا لائیں۔ یہی ہمارے لیے ترقی کی راہ ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے اعلان کے مطابق جو لوگ کبھی اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ پردہ انسانی زندگی میں ترقی کی راہوں کو روکتا ہے، اسلام کے بارے میں وہ طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام اپنی خواتین کو قید میں رکھنا چاہتا ہے، میں آپ سے صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام خواتین کو قید میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے حدود کے مطابق جو اللہ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق عورت کو زندگی گزارنے کا پابند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین
अपनी बादियों के बारे में और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूकात के बारे में बखूबी जानता है कि औरतों के लिए क्या चीजें सजावार हो सकती हैं, मर्दों के क्या हुकूक हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों सिर्फ के हुकूक की रियायत करते हुए उनको जिंदगी गुजारने का सही सलीका दिया, सही सब अता की। लेना हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। मुसलमानों, आप ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम की जबरदस्त आजमाइश की, मुश्किलात से दो चार किया गया, बहुत से नबियों को कत्ल किया गया। खुद हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे आप गौर करें। आपकी नबूवत की 23 साल जिंदगी में 13 साल जिंदगी मक्के में गुजरी, लेकिन क्या वे जानते हैं कि 13 साल जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुसीबत, कसम कुर्सी की आदम में गुजारा। आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने काबा में नमाज पढ़ने की इजाजत न थी। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अबू बकर सिद्दीक को मक्के से इसलिए निकालने की कोशिश की गई कि लोगों को अपने घर में नमाज की तालीम देते थे, कुरान की तालीम देते थे। आप ये बात जानते हैं बहुत सारे सहाबा किराम को ऐसी आदियत बर्दाश्त करना पड़ी जो आदियत उनके लिए जानलेवा साबित हुई। मामला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। आज हम लोग अगयार की साजिशों के नरवे में आने के बाद खाइफ हो जाते हैं, अपने ईमान को छुपाने की फिक्र और कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल जिंदगी मक्का में कुरैश के बीच और जो लोग अल्लाह के बागे और दुश्मन थे, फिरौन वक्त के सामने नबी की जिंदगी कैसे गुजरी। आप मेरे भाई ये बात जानते हैं कि उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये साजिश रच लिया था कि नबी को कत्ल कर दिया जाए, और कत्ल के सिलसिले में जो उनकी प्लानिंग थी, जो मंसूबाबंद तरीके से उन लोगों ने साजिश रचा था, वो साजिश ये थी हर कबीले से नौजवान लिया जाए, उसके हाथ में नंगी तलवार दी जाए, सुबह के तड़के में मोहम्मद के दरवाजे का वो घेराव करें, और जब मोहम्मद अपने घर से निकले तो सारी तलवारें बैक वक्त मोहम्मद के सर को कलम कर दें। ऐसे में मोहम्मद के खून का बहाव पूरे कबाइल में मुनकसिम हो जाएगा और मोहम्मद के खानदान के लोग तमाम कबाइल से लड़ने की ताकत नहीं रखकर दियत कबूल कर लेंगे, हमें इस्लाम से निजात मिल जाएगी। आप गौर करो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की ऐसी मंसूबाबंद साजिश, लेकिन ऐसे खतरनाक माहौल में अल्लाह की जात पर एतमाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में किस तरह था। मुसलमानों, आज जब मुसीबतों में घिर जाओ, परेशानियों से दो चार हो जाओ, हमारी सोसाइटी के शर्मसद लोग हमारे बारे में साजिश कर लें, तो ऐसे में नबी के ऐलान के मुताबिक हमें भी अपनी जुबान से ऐलान करना होगा, जिस ऐलान का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिक्र किया, वही यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़्रिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ऐ नबी, याद करो उस लम्हे को जब तुम्हारे बारे में लोग साजिश करते थे, या तो तुम्हें कैद कर दिया जाए तारीख कोठरी में, या तुम्हें मक्के से बाहर निकाल दिया जाए, या तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। जहां पर दुश्मनाने इस्लाम मोहम्मद के बारे में साजिश कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में साजिश और तदबीर कर रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर कारगर हुई। अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया, अपने दुश्मनों के बीच से उनके सरों पर मिट्टी डालते हुए निकल जाओ। नबी को अल्लाह ने महफूज किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के बीच से निकल गए। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मादी में अपने बंदों की हिफाजत करने पर कादिर था, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूदा दौर में, आने वाले अदवार में अपने बंदों की हिफाजत पर कादिर रहेगा। लिहाजा उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद करते हुए उसी का खौफ हमारे दिलों में पैदा होना चाहिए। हालात जितने भी संगीन हो जाएं और मसाइल जितने भी उलझ जाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन परेशानियों के आलम में दीन पर अमल करने की राहों को हमार करके रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का साफ तौर में फैसला है, वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मोमिनीन, मोमिनों की मदद करना हमारे दिन में फर्ज है। आप गौर कीजिए, मोमिनों की मदद के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जाबदा ऐलान करता है, इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयात दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। यकीनी तौर पर हम अपने रसूलों की, मोमिन बंदों की मदद इस दुनिया में भी करेंगे और आखिरत में उनकी मदद की जाएगी। मेरे भाइयों, इस बात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया
کہ اس کا دین غالب ہو کر رہے گا اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ذریعے ہی دین کو غلبہ دے گا۔ لہذا اگر اللہ کی بندگی کو ہم نے قبول کیا ہے تو اس کی بندگی کا ہم سے شدید تقاضا ہے کہ پرپیچ حالات میں، مشکل لمحات میں اللہ کی جانب رجوع کیا جائے، توحید کا اعلان کیا جائے، شرک سے بیزاری کا اعلان کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے تعلق استوار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دشمنوں سے ہر طرح کی برات کا اعلان کر دیا جائے۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی ہود کے بارے میں اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ جب قوم کے لوگوں نے نبی کو تانا دیا، نبی کے خلاف سازش کر لی اور نبی کے بارے میں الزامات عائد کرتے ہوئے کہا تھا ہمارے بتوں کی نظر بد کا شکار ہو گیا، لہذا ہلاک ہو جائے گا۔ ایسے میں اللہ کے نبی نے صاف طور پہ اعلان کر دیا تھا جب ان لوگوں نے کہا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود تم تو کوئی واضح دلیل اور نشانی لے کر نہیں آئے، وما نحن بتارک آلہتنا وما نحن لک بمؤمنین، ہم اپنے معبودوں کو تمہاری وجہ سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارا ماننا تو یہ ہے ہمارے بعض بتوں کی نظر بد تم پر لگ گئی ہے، تم یہاں سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایسی باتوں کو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا جب ان لوگوں نے کہا ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، نبی کی زبان سے بڑا اعلان نکلا تھا میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور صرف تم سے نہیں بلکہ پوری قوم کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا من دونی فقیدونی جمیعا، تم تمام لوگوں کو جمع کر لو، میرے بارے میں سازش کرو، مجھے مٹانے کی فکر میں لگ جاؤ، یاد رکھو میں تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات پہ اعتماد کرتا ہوں، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میرے خلاف سازش کرو، مجھے مہلت مت دو، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا توکل تو اللہ رب العالمین پر ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ مسلمانوں، ہمارا رب کون ہے؟ کیا قانون ہمارا رب ہو سکتا ہے دنیاوی؟ کیا لوگ جو حکومت میں ہمارے رب ہو سکتے ہیں؟ جواب ہوگا ہرگز نہیں۔ ہمارا رب تو وہ ہے جس کے بارے میں ابراہیم نے کہا تھا جو سورج کو مشرق سے نکالنے کے بعد مغرب میں ڈباتا ہے، اسی رب کے سامنے ہماری پیشانی جھکے گی، اسی رب کے سامنے ہم اپنے آپ کو عاجز پائیں گے، اسی کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ لہذا مسلمانوں، میرے ماں اور بہنوں، جب تک ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں یہ عقیدہ پیوست نہیں ہو جاتا کہ ہمارا خالق صرف اللہ رب العالمین ہے، ہمیں اسی پر اعتماد کرنا ہوگا، اس وقت تک ہم کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں، دشمنوں کا خوف ہم سے ختم ہو جائے، مصیبت ہماری زندگی میں نہ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یاد رکھو ایک مومن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له عقوبته فی الدنیا، جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا ہی میں جلدی کے ساتھ انسان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے، انسان کو تکلیفیں دیتا ہے، انسان پریشانیوں میں گرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اس کے دین پر قائم رہنے کے باوجود اگر غربت و افلاس کا شکار کر دے، اگر مصیبت سے دوچار کر دے، اگر بیماریوں میں جوجھتا ہوا چھوڑ دے، اگر دشمنوں کا اس پر حملہ ہو، تو یہ تمام کی تمام مصائب اس بندے کے لیے وہ اس بات کی دلیل ہے اور پیش خیمہ ہے کہ دنیا ہی میں اللہ رب العالمین نے اسے عذاب سے دوچار کرنے کے بعد آخرت کے عذاب سے چھٹکارا دے دیا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا، جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، دنیا میں اسے ڈھیل دیتا ہے، فراوانی اسے ملتی ہے، اور جب دنیا میں اسے فراوانی ملنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا نہ کرے تو قیامت کے روز سے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور دنیا میں وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا اور آخرت کی کوئی نعمت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا مسلمانوں، میرے ماں اور بہنوں، آج کے اجلاس میں جو لوگ شرکت کر رہی ہیں، خاص طور پہ طالبات، اپنے منصب کو پہچانو، اسلام کی عظمت کو پہچانو۔ اسلام اتنا عظیم دین ہماری زندگی میں ہے جس دین کا مقابلہ کفر اور اس کے تمام ادیان نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کی بندگی کا اعلان اور اظہار کرنا ہوگا، اپنے
अपनी अमली जिंदगी के जरिए। मैं आपके सामने बात पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को इस बात का पैगाम दिया कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी को बजा लाएं और अल्लाह की इबादत को अंजाम दें, अल्लाह के फरमान को सोचें कि ज़रूर ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के अलावा किसी और का हुक्म नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में मुस्लिम ख़वातीन की कुछ जिम्मेदारियां बयान करता है, मर्दों की जिम्मेदारी के बयान के साथ साथ। और वो जिम्मेदारी ये है, जैसा कि आपने इससे पहले खतीब की ज़बानी सुना, वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व मसऊला अन रइयतिहा। औरत अपने घर में घर के मसाइल, बच्चों की तरबियत और निगहदाश्त के बारे में जिम्मेदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जिम्मेदारी का उससे सवाल करेगा। और औरत के बारे में इस्लाम ने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसी औरत जिसके घर में उसकी जरूरतें जिंदगी मुहैया हो, उसके बावजूद वो औरत अपने घर से बाहर निकले, बेपर्दगी का मुजाहरा करे, तो ऐसी औरत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सलासुल मलऊनात, 3 तरह की औरतें अल्लाह की लानत की मुस्तहिक हैं, फरिश्तों की लानत पर होती है। नबी ने मुसलमानों से कहा इलअनुहुन्ना, तुम उन पर लानत भेजो क्योंकि वो लानत की मुस्तहिक हैं। कौन सी औरतें? जिनके घरों में जरूरत की चीजें मुहैया हैं, फिर भी वो घरों से बाहर निकलना फैशन समझती हो, क्योंकि आप जानते हैं औरत का बिला जरूरत घर से बाहर निकलना इस्लाम उसे हराम करार देता है। और अगर जरूरत के मुताबिक किसी औरत का घर से बाहर निकलना उसकी मजबूरी बन जाए, तो इस्लाम औरत को इस बात का पाबंद करता है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान और कानून के मुताबिक अपने घर से अपने आप को बाहर निकाले, यानी वो पर्दे का लिबास ज़ेब-ए-तन करने के बाद घर से बाहर निकले। पर्दे के लिबास से मुराद ये है ऐसा लिबास पहनकर जाए जिससे उसके जिस्म की रंगत का, उसके लिबास का पता ना चले। जैसा कि यूरोप की तारीख इस बात की दलील है कि यूरोप का सबसे तरक्की याफ्ता दौर, सबसे गोल्डन एज जो यूरोप का था, उस दौर में यूरोप की खवातीन का आदम यह था कि जब कोई खातून घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होती थी तो ऐसी चादर अपने जिस्म पर डालकर निकलती कि उस चादर को जिस्म पर ओढ़ने के बाद जिस्म के रंगत का पता चलना तो बहुत दूर की बात है, उसके कपड़े की रंगत का लोगों को इल्म नहीं हो पाता था। वो यूरोप का सबसे गोल्डन एज था, सबसे तरक्की याफ्ता दौर था। और याद रखो, जिस कौम में बेहिजाबी आम होगी, जिस कौम में बेपर्दगी आम होगी, बेहयाइयों के दरवाजे खुलेंगे। और बेहयाइयों के दरवाजे खुलने का मतलब ये हुआ तरक्की याफ्ता वो कौम नहीं, बल्कि तनज़्ज़ुली से दो चार होगी, अल्लाह का अज़ाब उस पर आएगा। और ऐसे लोग अपनी दौलत के बावजूद दलील और ख्वार होकर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे नबी ने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया था, किसी भी औरत के बारे में जो अपने घर से बाहर निकलना चाहती हो, लेकिन बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि वो बाजार जाना चाहती हो, नहीं, बल्कि अगर वो मस्जिद में इबादत के लिए जाना चाहती हो। आप मेरी बात को गौर से सुनिए, अगर कोई मुसलमान औरत अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह के घर में जाना चाहती है, क्योंकि अल्लाह के घर में उसके लिए जगह खास है जहां वो इबादत कर सकती है, जहां वो तिलावत कर सकती है, जहां अल्लाह का खौफ उसके दिल में आएगा और जहां वो अल्लाह से करीब होगी, तो ऐसी खातून को इस्लाम इस बात का पाबंद करता है कि अगर वो खातून खुशबू या मेकअप करने के बाद अपने घर से बाहर निकलती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस औरत की नमाज को कबूल नहीं करता, यहां तक कि वो अपने घर वापस जाए और गुस्ल करे, अपने जिस्म की खुशबू को जाहिर कर ले, फिर उसके बाद जाकर के इबादत करे। बात यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया, हमारी माओ और हमारी बहनों जरा बात को सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ तौर पर ऐलान करते हैं, अय्युमा इमरातिन इस्तातरत व मर्रत बिरिजाल यजिदू रिहाहा फहिय ज़ानिया, जो औरत भी खुशबू से मुअत्तर होने के बाद अजनबी मर्दों से उसका गुजर हो, अजनबी लोगों को उसकी खुशबू मिले, तो ऐसी औरत नबी के फरमान के मुताबिक गोया जिना की दावत देने वाली औरत है। इससे भी ज्यादा और वाज़ेह बात क्या हो सकेगी कि ऐसी औरत जो इस्लाम में दाखिल है लेकिन अगर अजनबी मर्दों से उसका गुजर हो, खुशबू उसने इस्तेमाल कर रखा हो, तो गोया वो औरत जिना की दावत देने वाली औरत है। और आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इंसानी सोसाइटी को, मुस्लिम समाज को बेहयाई और बुराइयों से पाक रखने के लिए जहां बहुत सारे तरीकों की तालीम दी है, उनमें एक बुलंद तरीका ये है कि कोई भी औरत किसी ऐसी जगह रात गुजारने की कोशिश न करे जहां उसका कोई महरिम ना हो। आप गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो मुस्लिम खातून किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे घर में रात गुजारती है जहां उसका कोई महरिम ना हो, यानी उसका शौहर ना हो, या उसका बाप ना हो, या उसका भाई ना हो, तो ऐसी औरत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अय्युमा इमरातिन नज़अत थियाबा फी गैरि बैति ज़ौजिहा व अबीहा फ़क़द नज़अत अल-हिजाब मा बैन अल्लाहि व बैनहा। जो औरत भी अपने बाप या अपने शौहर या भाई के घर के अलावा किसी ऐसी जगह रात गुजारना चाहती है तो गोया उसने अपने रब के बीच और अपने बीच जो हिजाब है, जो चादर है, जो कपड़ा है, उसे गोया नोच कर फेंक दिया। आज हमारी सोसाइटी में हम लोगों ने बेगैरती का सबूत दिया, शादियों में अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को भेज दिया जहां उसका कोई महरिम नहीं होता है, वहां वो हफ्ते रात गुजारती है, 2-4 दिन रहती है। इम्तिहान देने के नाम पर बच्ची को भेज दिया किसी रिश्तेदार के घर, वहां जाकर वो रात गुजारती है और नतीजा हमारे सामने है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। लिहाजा अगर इस्लामी गैरत का आप सबूत देना चाहते हो तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करना होगा, तब जाकर के हमारा घर जन्नत की अलामत बनेगा, हमारे बच्चे बेहतरीन तरबियत पाएंगे और हमारा माशरा तरक्की से हमकनार होगा। आखिर क्या वजह थी कि सहाबे किराम के घरों में परवरिश पाने वाले बच्चे, खाने पीने की किल्लत थी, दुनियावी वसाइल फराहम न थे, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ अल्लाह का खौफ अपने दिलों में रखा, अगयार को फतेह कर लिया, बड़े बड़े दरबारों में हाजिर हुए जहां शानदार किस्म के कालीन बिछे होते थे, लेकिन वो अपने मामूली लिबास में गधे पर सवार होने के बाद वहां जाकर नेज़े को नस्ब कर दिया करते थे। उन्हें उस महल का रोब उनके दिलों में नहीं पड़ता था। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, सुनन अबू दाऊद में जो हदीस मौजूद है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजूदा दौर की अक्कासी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं यूसिकु अलुमा मन तदा अलैकुम कमा तदा अकल इला मसातिहा। अन करीब वो ज़माना आएगा जब तमाम कौमें और उम्मतें उम्मत मुस्लिमा पर टूट पड़ेंगी। सहाबा को ताजुब और सवाल किया अनहनु मिन क़िल्लतिन यौमैन या रसूल अल्लाह, क्या उन दिनों में हमारी तादाद बहुत थोड़ी होगी? आपने कहा ला बल अंतुम कसीरून, तुम बहुत ज्यादा होगे, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, तुम तो झाग के मानंद होगे, खसो खाशाक के मानंद होगे, तुम्हारी कोई वकात नहीं होगी। और वकात नहीं होगी उसकी दो वजह अल्लाह के रसूल ने बयान किया। पहली वजह अल्लाह के रसूल ये बयान करते हैं वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल बहाबत मिनकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ और रोब निकाल देगा। वला यक़दिफन्नल्लाहु फी क़ुलूबिकुम अल वहन, तुम्हारे दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन वहन डाल देगा। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहन क्या है? तो आपने जवाब दिया था हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत। मुसलमानों, दुनिया की वाहिद कौम तुम हो जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बर्पा किया था, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते की जानिब पूरी इंसानियत की रहनुमाई करे, इंसानियत के जुल्म से लोगों को निकाल कर इस्लामी आदल में दाखिल कर दे। जिस कौम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक पूरी जहालत में डूबती इंसानियत को नूर और रोशनी में दाखिल कर दे। आज दुनिया इंसानियत को नहीं पहचानती। इंसानी हुकूक का नारा बुलंद करने वाले लोग जो पूरी दुनिया में हुकूक निस्वा की तंजीम चलाते हैं, इंसानी हुकूक का नारा बुलंद करते हैं, ऐसी तंजीमें इंसानों को कत्ल करने के लिए ऐसे ऐसे असलहे इस्तेमाल करते हैं जिन असलहों का इस्तेमाल इंसानों को हलाक करने के साथ साथ अल्लाह की मखलूकात को नीस्तनाबूद कर देता है। जरा आप गौर कीजिए, इस्लामी तालीमात के मुताबिक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दे दी थी तुम में से जो पहले अंबिया गुजरे हैं, एक नबी ने एक चींटी के काटने की वजह से दीगर चींटियों के घरों को जला दिया। अल्लाह ने उस नबी की जानिब वही किया
अन क़रसत नमलतुन अहरक़त उम्मतन मिनल उम्म कानत तुसब्बिहुल्लाह, एक चींटी ने तुमको डसा था, तुमने पूरी कौम को नजरातश कर दिया जो अल्लाह की तस्बीह बयान करती थी। जरा बताओ इससे ज्यादा आला तालीम और क्या हो सकती है कि एक चींटी के काटने की बुनियाद पर अगर नबी ने चींटी के बिल में आग लगा दी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस नबी को सरदनिश किया, उस नबी को डांटा। आज इंसानियत को, मासूमों को कत्ल करने के लिए पूरी दुनिया की जालिम कुव्वतें, दुनिया के जालिम हुक्मरान बम बरसा रहे हैं। आप सभी जानते हैं रूस और यूक्रेन में जो जंग हो रही है उसमें इंसानियत का कितना बेदरे कत्ल हो रहा है। इस्लाम ने तो कत्ल के बारे में साफ तौर पे कह दिया था, जो शख्स नाहक किसी इंसान को कत्ल करेगा वो पूरी इंसानियत का कातिल माना जाएगा। लेकिन आज इंसानों को लोग कत्ल करते हैं इंसानी हकूक के नाम पर, लेकिन इस्लाम ने इंसानी हकूक को महफूज किया। हम मुसलमानों के जरिए अमन आम होगा, लोग चैन की सांस लेंगे, इंसानियत को उसका दर्जा दिया जाएगा। और अगर इस्लामी तालीमात से हटकर इंसानियत को उसका दर्जा देने की कोशिश की जाएगी तो सूरत हाल क्या निकलेगी? ताकतवर इंसान कमजोर को खा जाएगा, जिस तरह जाहिलियत के जमाने में सूरत हाल थी। मैं आपके सामने मेरे भाइयों बहुत तफसील से गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं जस्ता जस्ता आपके सामने इस्लाम के कुछ नमूने पेश कर रहा हूं ताकि आप अपनी जिंदगी में एक खौफ का जो माहौल कायम है उस खौफ के माहौल से निकालिए, तालीम पे तवज्जो दीजिए और तालीम पर तवज्जो देने के साथ साथ इस्लामी अखलाक को आम कीजिए। इस्लामी अखलाक ही दरअसल हमें तरक्की से हमकनार करेगा। और जो कौम अपने अखलाक को फरामोश कर दे वो कौम को अपने आप को हलाक कर देती है। लिहाजा मुसलमानों, इस्लामी अखलाक को पहचानो। इस्लामी तालीमात के साथ साथ जब तक हम अखलाक से अपने आप को मुनव्वर नहीं करते, याद रखो हम तरक्की से हमकनार नहीं हो सकते। मैं आपके सामने ये बात पेश करना चाहता था, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका, शायद मजीद गुफ्तगू करना ये जलसे के बुनियादी मकसद के मुनाफी भी ठहर जाए। लिहाजा मैं चंद मिनट आपसे लेकर इंशाअल्लाह आपसे पहुंचाऊंगा। आप जरा मेरी बात को गौर से सुनिए, जिन बातों को मैं पेश करना चाहता हूं। आज के दौर में हमें अपने बुलंद अखलाक के जरिए, अपनी बुलंद तालीमात के जरिए गैर मुस्लिमों को इस्लामी अहकाम से आरास्ता करने के लिए हमें अमली नमूना पेश करना होगा। आप जानते हो गर्मी की शिद्दत का जमाना है, लेकिन इस्लामी तालीमात इस सिलसिले में क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को इस बात की तालीम दी कि पानी पिलाना बहुत बड़े सवाब का काम है। लिहाजा मुसलमानों, अपने वजूद के जरिए आप पानी पिलाने की कोशिश करो, पानी फराहम करो, हैंड पाइप लगाओ, वाटर कूलर दो, किसी के यहाँ वाटर सप्लाई कर दो, किसी को मोटर दे दो। अलगरज पानी फराहम करने के जो वसाइल हो सकते हैं उन तमाम वसाइल को इस्तेमाल करने के साथ साथ पानी पिलाने की जो फजीलत इस्लाम में बयान की गई है उस फजीलत को हासिल करो। आप जानते हैं खाना खिलाना, पानी पिलाना इस्लाम की बुलंद तालीमात में दाखिल है। एक मुसलमान कभी भी बखील नहीं हो सकता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे गरीब मुसलमान को जबरदस्त बशारत सुनाई है जो गरीब इंसान पैसा खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं पाता, लेकिन जितना उसके पास फराहम है उसमें खंदा पेशानी के साथ, शरह सद्र के साथ अल्लाह की बारगाह में पेश करता है। और याद रखो, हमारी सोसाइटी का हर फर्द जब तक इस्लामी अखलाक को नहीं अपनाएगा उस वक्त तो कामयाबी से हमकनार नहीं हो सकता। लिहाजा अगर खुशी चाहते हो, शादमानी चाहते हो, तरक्की चाहते हो तो इस्लामी अखलाक को आम करो, पानी पिलाने को रवाज दो, खाना खिलाने को रवाज दो, लोगों के हकूक को पहचानो, जुल्म ज़्यादती से बाज आ जाओ। यही इस्लामी तालीमात हैं और इन्हीं तालीमात पर अमल पैदा होकर इस्लाम गुज़िश्ता ज़माने में फैला था और इस्लाम के बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल जाने के पसे पर्दा जो बुनियादी राज था वो हमारी इस्लामी तालीमात थी, इस्लामी अखलाक थे। लिहाजा मुसलमानों, मेरी माँ और बहनों, खास तौर पे आप लोग अपने घरों को लाजिम पकड़ो और घरों में इस्लामी अखलाक को आम करने की फिक्र और कोशिश करो, जुबान की हिफाजत करो। ये तमाम की तमाम चीजें हमारे लिए इंतहाई मुफीद और कारगर साबित होंगी। मैं इन्हीं कलिमात पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को और इस इदारे के जो मुंतज़िमा कमेटी है, असातिज़ा हैं, मुअल्लिमात हैं,
तलबा और तालिबात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में जगह दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को कुर्बान चढ़ाए, इल्म की शमा इससे रोशन हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क नेपाल, मुल्क हिंद के लिए इस इदारे को एक मरकज़ी इदारा बनाए। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ बार बार कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे से इल्मी शमा रोशन करे और इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब सुन्नत की तालीम को फरोग होने के मौके मैसर करे और इस इदारे को अल्लाह रब्बुल आलमीन तरक्की से हमकरार करे। जो लोग भी इस जलसे में शामिल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी शमूलियत को अपने लिए खालिज कर ले, उसे कबूल करे। शायद अभी इख्तिताम में दुआ का कोई इत्माम होगा। बहसूरत मैं इन्हीं कलिमात पे आपसे वसूल होना चाहता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।